یہ مجاز، یہ ٹرینڈ ٹھیک نہیں ہے، سماج کے لیے خطرناک ہے، آنے والی نسلوں کے لیے اور بھی خطرناک ہے۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں اڑائی جاتی ہیں، مگر ان میتھس کو، ان پروپیگنڈاز کو، ان غلط مس انفارمیشن کو ٹھیک کرنے کے لیے، بریک کرنے کے لیے ہم لوگوں نے کوشش کیا کہ ایک ڈائریکٹ ڈائلاگ کیا جائے آپ جیسے لوگوں کے ساتھ جو سماج میں شانتی چاہتے ہیں، جو ایک پیسفل انوائرمنٹ چاہتے ہیں۔ ہمارے درمیان اس ملک کی تاریخ میں بھی اور اس دنیا کی تاریخ میں بھی بہت سی بڑی بڑی ہستیاں، مہان ویکتتو گزرے ہیں۔ پروفٹ عیسیٰ علیہ السلام بھی گزرے ہیں، موسیٰ، موسیس، جیسس کرائسٹ، خود اس ملک میں مہاتما گاندھی جن کا آج برتھ ڈے ہے، ایک بڑی شخصیت گزری، بہت سارے لوگ گزرے ہیں۔ ہم ان کے بارے میں کسی نہ کسی موقع سے، گوتم بدھ کے بارے میں، مہاویر کے بارے میں، یہ سب بڑے گریٹ لوگ گزرے ہیں، ہم ان کے بارے میں کسی نہ کسی موقع سے ہم سنتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیوں نہیں؟ ہمیں ان کو بھی جاننا چاہیے، ان کے بارے میں بھی سننا چاہیے، اور آتھینٹک سورس سے سننا چاہیے، صحیح میسج ہمیں ملے۔ اس کے لیے ہمیں ایسی مجلس کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ ہم ایسی مجلسیں قائم کریں جہاں ان کے بارے میں وہ ٹھوس باتیں بتائی جائیں۔ اور آپ کو ایک اور بات بتا دوں، میں دنیا میں جتنے بھی لوگ گزرے ہیں، گریٹ لوگ، ان سب کی بایوگرافی موجود ہے، کتابیں لکھی گئی ہیں ان کے اوپر، گوتم بدھ کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں، مہاویر کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں، جیسس کرائسٹ کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ مگر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، اس کے لکھنے کا طریقہ اور لوگوں کی زندگی کو پریزرو کرنے کے طریقے سے ذرا الگ ہے۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف کا ایوری سیکنڈ، آپ کی زندگی کا ہر سیکنڈ، بلکہ آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے پیرنٹس کے لائف کے سیکنڈز اور منٹس ریکارڈ کیے گئے، اور اس وقت پڑھنے لکھنے کا عام رواج نہیں تھا، تو یہ ریکارڈ ہوا ہے ایک وٹنس کے ذریعے، جس کو بولتے ہیں نیریٹر، اور چین آف نیریشن کو مینٹین کیا گیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر میں کہوں کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی تھی، اور وہ بات یہ کہی تھی کہ مزدور کی مزدوری اس کے پسینہ کے سوکھنے سے پہلے ادا کرو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹیٹمنٹ ہے۔ وہ عربی زبان میں ہے، میں اس کا ٹرانسلیشن کر کے بول رہا ہوں، اس میں تھوڑا اوپر نیچے ہو سکتا ہے، ایگزیکٹ عربی ورڈ جو ہے وہ ہمارے علماء جانتے ہیں، لیکن اس میں اس اسٹیٹمنٹ میں اتنی بات کہی گئی ہے، لوگوں سے یہ کہا گیا، اور اس زمانے میں کہا گیا ہے جب دبے کچلے لوگوں کی سماج میں کوئی عزت نہیں ہوتی تھی، جب غلاموں کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی تھی، ان کی زندگی جانور سے بدتر ہوتی تھی، ان کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مزدور کی مزدوری اس کے پسینہ کے سوکھنے سے پہلے اس کو دے دو۔ تو جیسے ہی یہ اسٹیٹمنٹ ہم تک پہنچتا ہے کہیں سے بھی، تو میں پہلے اس کو دیکھتا ہوں کہ یہ بات کہاں سے آئی۔ جب پروفٹ محمد یہ بات بول رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کو کون سنا؟ جس آدمی نے سنا اس نے پھر کس سے کہا آپ کے جانے کے بعد، اور پھر اس تیسرے شخص نے اس بات کو کس کے پاس پہنچائی ہے جس نے اس کو کتاب میں لکھا ہے۔ آج جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹیٹمنٹس ہمارے پاس ہے، ان کے ڈیڈز، ان کے واکس اینڈ لائف، وہ بکس میں پریزرو ہے، کتابوں میں پریزرو ہے۔ کتاب لکھی گئی آپ کے دنیا سے جانے کے 150 سال بعد، کتاب لکھی گئی آپ کے دنیا سے جانے کے 200 سال بعد، تو 200 سالوں تک یہ بات کس کے پاس تھی؟ اب جس آدمی نے یہ اسٹیٹمنٹ پہنچایا ہے، ایک چین کے ذریعے پہنچا ہے۔ مثال کے طور پر یہ بات امتیاز صاحب نے سنی، امتیاز صاحب نے اظہر صاحب سے بتایا، اظہر صاحب نے ڈاکٹر صاحب کو بتایا، اور ڈاکٹر صاحب نے ایک شخص کو بتایا کہ آپ اس کو لکھو۔ میں اس کو اس کے لیے آتھینٹیکیٹ کرتا ہوں کہ یہ بات سنی گئی ہے، فلاں اظہر صاحب نے سنی اس کو امتیاز صاحب سے، اور امتیاز صاحب نے سنا اس کو پروفٹ محمد سے۔ تو یہ چین آف نیریشن ہے،
इस चेन ऑफ नरेशन में जितने नरेटर्स आए टिल द बुक तक रिकॉर्ड होने तक, इसको बहुत अच्छी तरह सुन लीजिए, सारा प्रोपेगेंडा क्लियर हो जाएगा। प्रोपेगेंडा की जगह छोड़ी ही नहीं गई इस्लाम में, कोई फॉल्स बात आ ही नहीं सकती है, इन्फिल्ट्रेट नहीं हो सकता, ये बहुत फूल प्रूफ है। अब जितने नैरेटर्स इस स्टेटमेंट को बुक के राइटर तक पहुंचाए हैं, उनमें 2 नैरेटर हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। इन तमाम नैरेटर्स का लाइफ भी प्रिजर्व किया गया, इनकी जिंदगी भी छानी भटकी गई, इनको भी देखा गया कि ये कैसा आदमी है, ये झूठा तो नहीं है, इसका समाज में क्या रोल और रिकॉर्ड है। और जब तक नैरेटर्स खरे नहीं उतरे हैं, उस वक्त तक उनका स्टेटमेंट लिया नहीं गया। किताब लिखने वालों ने जब नैरेटर्स को परखा है, जांचा है, उनके बारे में जानकारी हासिल की है, सोसाइटी के लोगों से पूछा कि कभी धोखा दिया, पूरी जिंदगी में अगर एक बार भी धोखा दे दिया, और धोखा देने का मेयार क्या है मालूम है? एक बुखारी, इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने किताब लिखी है हदीस की, वो कहते हैं कि मैं 6 महीने सफर करके एक साहब के पास गया कि उनके पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, प्रॉफिट मोहम्मद का कोई स्टेटमेंट है लेने के लिए। जब मैं वहां पहुंचा तो दूर से देखा कि वो अपने घोड़े को हाथ में कुछ ऐसा करके बुला रहे हैं, आदमी जानवरों को बुलाता है खिलाने के लिए कुछ दिखा करके, और वो दिखा कर बुलाते रहे, जानवर करीब आ गया और करीब आकर उसको पकड़ लिया, हाथ में कुछ भी नहीं था। बुखारी ने कहा कि तो झूठा आदमी है, इसने जानवर के साथ ये छल किया है, लिहाजा इसकी बात हालांकि सही हो सकती है, एक आदमी सही बात कर सकता है, बात जो है ट्रू उसकी हो सकती थी, लेकिन सिर्फ इस बुनियाद पर कि उसने जानवर के साथ छल किया है, उसकी बात नहीं ली जाएगी। ये सेट किया गया स्टैंडर्ड, नैरेटर्स के लाइफ को उस स्टैंडर्ड पर नापा गया जहां इतनी की भी गुंजाइश नहीं रखी गई, और इस चक्कर में प्रॉफिट मोहम्मद की हर बातें रिकॉर्ड में सही सही आए, कोई गलत बात ना आ जाए। तकरीबन 6 लाख लोगों की जिंदगी प्रिजर्व हो गई, 6 लाख नैरेटर्स की जिंदगी प्रिजर्व हो जाती है, एक इंसान के बातों को सही सही दुरुस्त ट्रू पहुंचाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए। तो आज हमारे पास जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, वो सारे इंफॉर्मेशंस बहुत ही फुल प्रूफ तरीके से ट्रू वे में हमारे पास पहुंचाए गए हैं। आज अगर कोई खड़ा होकर के आपके बारे में कोई गलत बात कहता है, या कोई ऐसी बात कहता है जो बात हमने सुनी नहीं थी, तो हम उनको किताबों से चेक करके देखते हैं कि ये बात है, अगर नहीं है तो बात वाकई में नहीं हो सकती है। इसलिए कि आपकी जिंदगी का हर सेकंड, हर लम्हा लोगों ने रिकॉर्ड किया हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे होते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैठे होते थे तो आपका चेहरा किधर होता था, किधर देख किधर रहे हैं, आपके बाल कैसे हैं, आपके चेहरे की दाढ़ी कैसी है, इन बातों को भी लोगों ने लिखा है, लोगों ने रिकॉर्ड किया है। ये मोहब्बत थी आपके स्टूडेंट्स को, आपके पुपिल्स को। तो जिस आदमी के हर सेकंड, हर लम्हा रिकॉर्ड हो, वहां घुसने की गुंजाइश, प्रोपेगेंडा की गुंजाइश, फॉल्स इंफॉर्मेशन की गुंजाइश बचती नहीं है। तो ये आपके साथ एक खास बात थी कि आपके बारे में जो कुछ भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो इंतहाई ट्रू और फुल प्रूफ है, उसमें कहीं किसी प्रोपेगेंडा की गुंजाइश नहीं है। जो लोग प्रोपेगेंडा करते हैं वो मनगढ़ंत बातें अपनी तरफ से फैलाते हैं, हालांकि इसकी जगह बचती नहीं है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दौर में आए, पूरी दुनिया के हालात पर 6ठी सदी, 7वीं सदी ईसवी पर अगर आप नजर डालें, जो हिस्टोरियंस ने बयान किए हैं, यूरोप का हाल ये था कि वहां जो बादशाह होते थे वो खेल तमाशे के लिए, शाम में मनोरंजन के लिए इंसानों को, गरीब गुलाम इंसानों को शेर के पिंजरे में डालते थे, और शेर उनको चीरता फाड़ता था और वो चारों तरफ से मसनद लगाए बैठे उसको एंजॉय करते थे। दिस वाज द सिचुएशन इन यूरोप। यूरोपियन एम्पायर्स, किंग्स, ये उनका खेल तमाशा था। गुलाम खरीद बिक्री किए जाते थे, उनका कोई स्टेटस समाज में नहीं था। औरतों की जिंदगी जानवर से बदतर थी। बच्चियां पैदा होती थी तो उनको शर्म के मारे कि हम बच्ची के, बेटी के बाप कहलाएंगे, उसको दफन जिंदा कर दिए जाते थे। ये समाज का हाल इंतहाई खराब था। लड़ाई झगड़े मार काट में लोग फख्र महसूस करते थे, बुराई करने में, रेप करने में, बलात्कार करने में लोग फख्र महसूस करते थे।
وہ गिनती गिनाते थे कि हमें इतने बलात्कार किए। एक ऐसे दौर में जो द डार्केस्ट एरा ऑफ द वर्ल्ड था, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए इस दुनिया में। अल्लाह ने आपको नबूवत दिया, आपको प्रोफेसी देकर के भेजा, और फिर आपने अपनी टीचिंग से, आपने अपनी बातों से दुनिया को, उन्हीं लोगों को, उन्हीं इंसानों को एक ऐसा इंसान बनाया जिनकी जिंदगी को अगर आप पढ़ें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रॉफिट मोहम्मद के किसी एक स्टूडेंट की लाइफ अगर आप पढ़ेंगे तो आप कहेंगे कि ये फरिश्ते हो सकते हैं, जमीन के लोग नहीं हो सकते हैं। ये वही लोग थे जो मार काट कत्ल, बल्कि कत्ल का सिलसिला चलता था। आपसे झगड़ा हो गया है तो लड़ाई चलती रही, मरने के वक्त अपने बेटे को बोलता था कि रोकना नहीं चाहिए, एकदम कत्लेआम जारी रहे। ये लोग थे। फिर ये फरिश्ते जैसे वो हो गए, ये सब लोग हो गए, सिविलाइज्ड हो गए। आपने उनके ऊपर मेहनत की, आपकी टीचिंग्स, आपकी तालीमात, आपकी शिक्षा इंसानों की जिंदगियों को बदलने के लिए जबरदस्त रोल प्ले किया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिन लोगों ने, वेस्टर्न हिस्टोरियंस ने इस इरादे से कलम उठाया कि आप पर कुछ कीचड़ उछाले जाए, कहीं से कुछ निकाला जाए कीड़ा, लोगों की आदत होती है, तो बेचारे कीड़ा निकालने के चक्कर में आपकी जिंदगी पढ़ते थे, और पता चलता था कि वो किताब मुकम्मल करने से पहले वो आपका गुलाम बन जाता था, वो आपका शिष्य बन जाता था। ये हालत आज के दौर में भी देखी जाती है। आज भी बहुत सारे लोग उठते हैं आप पर। हमारे यूपी के, लखनऊ के वो स्वामी एक शंकराचार्य जी हैं, मुझे नाम जब याद आएगा तो मैं बता दूंगा। उन्होंने एक किताब लिखी, वो किताब लिखी, उसका नाम है द हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक टेररिज्म, इस्लामी इतिहास का आतंकवाद, इस्लामिक आतंकवाद का इतिहास। हिंदी भी है उसका, अंग्रेजी में द हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक टेररिज्म। उस किताब को लिखने के बाद स्वामी जी का बड़ा, लखनऊ में एक बड़ा प्रोग्राम हुआ, हमारे यहाँ की जो सबसे बड़ी इस मुल्क की तंजीम है उसने, और बहुत वाहवाही हुई। स्वामी जी को उसी स्टेज पर वो लिखते हैं, वो कहते हैं, उनका अपना मैं स्पीच सुना हूँ कि मैं उस स्टेज पर, मुझे लोग कंधे पर उठा करके एकदम बिल्कुल उछाल रहे थे, तो मुझे एहसास हुआ कि मैं जो किताब लिखा हूँ ये सही भी है या नहीं है, ये मैं कंफर्म नहीं हूँ। मैं तो दुनिया में जो बातें सुनता था उसी को लिख दिया, तो मुझे जानना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए। फिर स्वामी जी पढ़ना शुरू किए, कुरान पढ़ना शुरू किए, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाइफ हिस्ट्री पढ़ना शुरू किए, और पढ़ने के बाद उनको बड़ा रिग्रेट हुआ कि यार मैं तो बहुत गलत काम किया, मैं स्वामी आदमी हूँ, संत आदमी हूँ, मैंने झूठी बातें लिखी हैं, जो दुनिया कहती थी, जो मीडिया कहता था, वही मेरी थी। फिर स्वामी जी ने उसकी रद में एक किताब लिखी है, इस्लाम आदर्श या आतंक, इस्लाम आदर्श या आतंक नाम की किताब पढ़नी चाहिए। और उसके प्रीफेस में उन्होंने रिग्रेट किया कि मैं बिना समझे बुझे, बगैर पढ़े हुए, हमने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया, बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, उसका प्रायश्चित कर रहा हूँ। स्वामी जी आज भी हैं, जब ये किताब लिखी गई उनके घर पे जान से मारने की धमकियां उनको मिलने लगी। स्वामी जी बड़ी मुश्किल से इधर उधर भागते रहे, कभी कानपुर, कभी गोरखपुर, कहीं कहीं बचा करके अभी बचे हुए हैं जिंदा। तो जिन लोगों ने आपके ऊपर, आपके बारे में जानना चाहा, आज 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी, हजरत मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह, फ्रीडम फाइटर गुजरे हैं, उनके पास गए मुलाकात करने के लिए, और उनसे कहा कि मैंने कुरान पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। अच्छा। फिर उन्होंने कहा कि मैंने प्रॉफिट मोहम्मद की जीवनी पढ़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, उनकी जीवनी में तो इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं कि वो अगर हिंदुस्तान में भारतीय लोगों को बता दिया जाए तो भारत स्वर्ग बन जाएगा। तो मौलाना मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे पूछा कि अच्छा ये बताइए कि आपने कुरान पढ़ा और आपने प्रॉफिट मोहम्मद की जीवनी पढ़ी, तो कोई ऐसी बात भी है क्या जो मुनासिब नहीं है आपके नजरिए के हिसाब से? क्योंकि आप तो मुसलमान नहीं, एक मुसलमान जब कुरान पढ़ेगा तो श्रद्धा के साथ पढ़ेगा, उसमें कोई गलत बात देख ही नहीं सकता, लेकिन आप तो मुसलमान नहीं है, आप उसको क्रिटिकल भी पढ़ सकते, क्रिटिक वे में ही पढ़ सकते हैं। तो पूछा कि कोई ऐसी बात भी है जो आपके हिसाब से मुनासिब नहीं हो, उसको ठीक करने की जरूरत हो? तो बहुत
गांधी जी ने कहा कि देखिए, मैं इस बात के लिए तैयार तो नहीं था कि ये सवाल मेरे जीवन में कभी आएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैं उसमें कोई कमी ढूंढ पाऊंगा। मैंने बहुत दिल से उसको पढ़ा है। तो जीवनी, आपकी जीवनी में बहुत सारे संदेश हैं और पूरे मानवता के लिए है। आपकी हर शिक्षा हर इंसान के लिए है। आपके किए गए कार्यों के हिसाब से चलना, आपके फुटप्रिंट को फॉलो करना सुन्नत कहलाता है। हमारे यहाँ उसको सुन्नत कहते हैं। पानी पीना है ना, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बैठकर पानी पिया करो, धीरे धीरे पानी पियो, सांस रोक रोक कर पानी पियो, फटाक से पानी उंडेल नहीं लेना है गले के अंदर। ये आपने कुछ तरीके बताए, इसको हम क्या कहते हैं? सुन्नत कहते हैं। अब जितनी भी सुन्नतें हैं आपकी, उसको आपने इसलिए बताया लोगों को कि इससे आपका वर्ल्डली बेनिफिट है। इस दुनिया में अगर आपको जिंदा रहना है और अच्छे से रहना है, आपको बीमारी से बचना है, तो इन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। अच्छा, अब देखिए 2024 में एक रिसर्च पेपर आता है। आपने 1400 साल पहले बताया था कि पानी खड़े होकर के पीना नहीं है, लेकिन पानी खड़े होकर पीने में कितनी खराबी हो सकती है इंसान के हेल्थ का, क्या क्या डैमेज हो सकता है, वो 2024 में कुछ साइंटिस्ट मिलकर एक पेपर पब्लिश करते हैं।